We'll shift our focus now to the politics that's playing out between the Congress and the BJP over the Bharat Jodo Yatra. There's a fierce fight over the conduct of the Yatra after the Health Ministry had red flagged certain cases as a consequence of COVID protocols not being followed in the Yatra. The Congress has said that it will oppose it will actually oppose political protocols, and that any political restrictions that are imposed on the Yatra but not scientific protocols. Both the Prime Minister and the Chief Minister, the Congress claims, are trying to stop the Bharat Jodo Yatra from entering into Delhi. Let's listen into these reactions. We are very much abiding the rules of this country every time. Whenever the COVID started, we are the party totally abide by the corona guidelines. But here, clearly a double standard of BJP, you can see that. Every day Prime Minister is doing rally. 2 days before only he done a rally in Tripura. Whether the Health Minister wrote a letter to the Prime Minister. He is asking the Bharat Jodo Yatra to be stopped. That shall be a clear indication of the success of Bharat Jodo Yatra. This is a certificate for Bharat Jodo Yatra success. Therefore, we are very much aware of this fact. अभी मुझे जानकारी मिली है कि आज सुबह हरियाणा के पुलिस ने खूब कोशिश की लोगों को नहीं आने देने। आपको ये क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। जुलाई 2022, सितंबर 2022 और नवंबर 2022 में गुजरात और ओडिशा में 4 ऐसे केसेस मिले। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू होती है। तब अचानक परसों स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं। आज हमें जानकारी मिली है कि आज प्रधानमंत्री स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाए। Let me go across to Niyamika for more on this. Niyamika, now while of course the Congress party may claim that they're being singled out because of the notice that has gone to them from Mr. Mansukh Mandavia, the health minister, what really explains the fact that despite that notice having gone out, COVID protocols have not been observed on the ground as the Yatra continues in Haryana and shortly is expected to also make its way into Delhi? Any mask, and there is no social distancing, and even these are the people who are even coughing and sneezing openly and even spitting on the roads. And when this question was being asked from the Congress General Secretary Jairam Ramesh, then he has clearly said that I am pretty sure that all the people, all the Bharat Yatris are doubly vaccinated, and not even a single case has been reported in the Bharat Jodo Yatra. But let us speak to these people that what are their viewpoints if we talk about the COVID situation in the country. कोविड की अगर बात करें, कोरोना की बात करें, यहाँ पर किसी को मास्क लगाए हुए नहीं देख रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए? कोरोना मैडम जी है कहाँ? कोरोना है ही नहीं, कोरोना कहीं नहीं है, ये सरकार वाले बना रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से वो लेटर भी जारी कर रही है, मीटिंग्स भी कर रही है, केसेस भी दिखाई दे रहे हैं कि बाकी कंट्रीज में बढ़ रहे हैं। ये मैडम, ये बहन जी, ये राहुल से डर रहे हैं, कांग्रेस से डर रहे हैं। ये कहीं कोरोना नहीं है। वो कितनी बड़ी वो करते हैं, रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना की अगर बात करें, किसी को मास्क पहने हुए नहीं देख रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने लेटर लिखकर भी बोला था कि कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना चाहिए, लेकिन अभी कोरोना को फॉलो अप करने की आवश्यकता तो महसूस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी जगह हर चीज हो रहा है। तो इसमें अभी कोरोना तो है ही नहीं है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बिल्कुल जीरो है कोरोना। तो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का एक बहाना है, ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का एक बहाना है और कुछ नहीं है। लेकिन चाइना की अगर बात करें, चाइना में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता हमारे देश में भी पूरे पहले से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? भारत में तो ये सब इंजेक्शन वगैरह लग लिए, कुछ नहीं है अब कोरोना की कोई जरूरत नहीं। ये है कि कोरोना फैलेगा जैसे पहले के सालों में हमने देखा है, वैसे यहाँ पर जिस तरह की भीड़ है, कोरोना फैलने के पूरे चांसेस। देखो मैडम, हम कहना चाहते हैं, हमने बूस्टर डोज भी लेला है, मगर जनता की इतनी भीड़ जो है वो भारतीय जनता पक्ष की विचारधारा को बड़ा बूस्टर डोज मिलेला है। इसके लिए केंद्र सरकार अभी ये डरवाया बता रही है। अगर उन्होंने कितना बूस्टर डोज लिया है
ये बूस्टर डोज राहुल जी ने दिया, इतना बड़ा बूस्टर डोज दिया कि जात पात के बंधन तोड़ो। क्या ये जो बूस्टर डोज उनको लगेला है, क्या नाता भारत जोड़ो, ये बड़ा बूस्टर डोज बीजेपी को लगेला है। अगर सरकार घोषणा कर देती है कि कोविड प्रोटोकॉल जो है उनको फॉलो करना है, तो क्या फॉलो किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा में भी? ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसकी बौखलाहट है, न कि ये कोविड का एक बहाना बना के। और भाई राहुल जी की यात्रा को है न, जो एक तरह से इनका मकसद है बंद करने का। आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने की कोशिश है? तो सरकार के नियमों का पालन तो करेंगे क्योंकि मजबूरी होती है, लेकिन ये बौखलाहट जो दिख रही है धीरे धीरे जैसे जैसे जनता का सैलाब उमड़ रहा है राहुल जी के इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, उससे क्या है आपस में भाईचारा और प्रेम बढ़ रहा है। और इस भाईचारे और प्रेम बढ़ते हुए भाईचारे प्रेम के अंदर रहने जो भाजपा अपने आप को समा नहीं पा रही है। कई केसेस भी सामने आए हैं कोविड के भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें। हालांकि जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद में। तो आपको नहीं लगता है ऐसे में बहुत जरूरी है कोविड नियमों का पालन करना? फिर तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अगर कोविड आ रहा है तो एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सभी के वैक्सीन लगा दी गई है, कोविड नहीं आएगा, फिर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रश्न चिन्ह है ना प्रश्न चिन्ह। लेकिन क्या हम लोगों को अपनी तरफ से नहीं पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हम अपनी तरफ से क्या करेंगे जब भारतीय गवर्नमेंट ये कह रही है ना सभी वैक्सीन लग चुकी है सभी के, तो कोविड का क्या मतलब है? आपसे अगर पूछे आप लोग क्या मास्क लगाने के लिए आपको नहीं लगता है जरूरी है जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं? अगर जरूरत होगी तो जरूर लगाएंगे, लेकिन वर्तमान में सत्ता दल है वो क्रूरता पर उतर गया है। वो अपने सारे हथकंडे अपना रहा है इस यात्रा को रोकने के लिए। अभी जैसे जहाँ भी यात्रा जाती है ना, जैसे यहाँ यात्रा आई है रुकी हुई है, तो उन एरियाज की इलेक्ट्रिसिटी काट देती है। इस वजह से रात को और सुबह अंधेरे की समस्या होती है। कोविड की बात हम लोग कर रहे हैं, कोविड का अगर पूछा जाए क्योंकि यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लोग ऐसे ही खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, कोई कोविड नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। मोदी जी जवाब देना कि आखिर डर कोविड का है या फिर उनकी क्रूर तानाशाही शासन को उखाड़ने के लिए जनता एकजुट हुई है, इस चीज का डर है उनको। डर असल में इस भारत जो एकजुट हो रहा है उनकी नफरत के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, जो उनका इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा है, उस चीज से इस जनता से डर है उनको। So these are the voices from the ground as the people here in Haryana believe that there is no COVID spread here in the state and this is just an attempt of the Bharatiya Janata Party to stop this Bharat Jodo Yatra because the BJP is getting rattled because of the gaining popularity of Bharat Jodo Yatra, and that is the only reason why these meetings are taking place, why that letter of health minister is being written to the Congress leader Rahul Gandhi as well as to the Congress president Mallikarjun Kharge. While on the other hand, when we have asked this question from the Congress party, Jairam Ramesh has clearly mentioned that not even a single case has been reported in among the people who are there in the Bharat Jodo Yatra. While we have also seen that the Himachal Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has been tested COVID positive just 2 days after he had participated in the Bharat Jodo Yatra. So a big question has also been raised. Thanks a lot for that, Niyamika. That's a very comprehensive update you've given us from Nuh in Haryana, where the Bharat Jodo Yatra is now on.